hello to all my students. Dear students, I am here with the solutions of the botany part of FT2. Let's start without wasting time. The very first question is question number 91. Let's read the question. Select the correct statement. Correct statement को tick करना है. About what? Pleiotropism. So now what is pleiotropism? A gene is said to be pleiotropy if it affects more than one trait. Obviously, more than one trait, more than one character is known as pleiotropism. Correct line है. Phenylketonuria is an example of pleiotropy. Is this correct or not? Yes. Phenylketonuria से हमारे पास क्या होता है? हमारे पास में कौन था? Phenylalanine. किसमें कन्वर्ट होती है? टायरोसिन. In presence of what? The enzyme hydroxylase. But अगर मेरे पास टायरोसिन नहीं बना, क्यों? अगर मेरे पास वो एंजाइम नहीं बना, तो यहाँ पर क्या कन्वर्ट होता है? Phenylalanine किसमें कन्वर्ट होता है? Phenylpyruvic acid. And then we have what? The phenylketonuria. इससे क्या होता है? हमारे पास में क्या नहीं बनता है? मेलानिन पिगमेंटेशन कम बनता है. तो हमारे पास स्किन में, हेयर में क्या हो जाता है? ग्रेइश पार्ट आउट हियर. स्किन में तो व्हाइटिश, हेयर में ग्रेइश आउट हियर. और यहाँ से क्या होता है? You are going to have arthritis because you accumulate होता है joints में. You are also going to have mental disorder. That means एक जीन ने आपको क्या दिखाया? बहुत सारा effects out here, बहुत सारा characteristics out here. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Pleiotropism. So this is also correct. A condition where one gene has several alleles. सेवरल एलील्स. जैसे मेरे पास आता है सेवरल एलील्स. अभी मैंने आपको क्या बोला था? एक जीन दो एलील्स होता है, बट मोर देन टू एलील्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलीलिज्म. क्या बोलते हैं उसको? मल्टीपल एलीलिज्म. सो दिस इज अ रॉन्ग लाइन आउट हियर. ठीक है ना? सो दिस इज रॉन्ग. Next, a trait is said to be pleiotropic if many genes, several genes control it. Several genes control a trait. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Polygenes. So this is also wrong out here. तो हमको पूछा गया था which is the correct answer for this. The correct form for this is option A and option B. That means statement A and statement B. So what is the answer for that? A and B only. The answer for 91 happens to be the A option. Let's go for 92. Which of the following statements are correct about respiration? Respiration के लिए correct है. Energy of oxidation reduction is utilized for phosphorylation. Yes, what is phosphorylation? Formation of ATP. कहाँ पे बनता है? ETS में. तो क्या energy source है मेरे पास में? Oxidation reduction. Line है NCERT की, which is correct. Oxygen acts as a final hydrogen acceptor, which is again correct out here. Oxygen is not present in any of these three steps for that. कौन कौन सा थ्री स्टेप्स? ग्लाइकोलाइसिस, मेरे पास में क्रेब्स साइकिल, फिर मेरे पास ETS में एंड में जाके मेरे पास में क्या आता है? ऑक्सीजन का रोल, विच इज गोइंग टू रिसीव द हाइड्रोजन आउट हियर. तो ऑक्सीजन एक्ट्स एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर. फाइन. Photooxidative energy is utilized for what? The production of proton gradient required for phosphorylation. Phosphorylation is what? Formation of ATP. But हमारे पास दो टाइप का photophosphorylation होता है. कौन कौन? Photophosphorylation और क्या है मेरे पास में? ऑक्सीडेटिव phosphorylation. फोटो वर्ड आने से what is it related to? It is related to the ATP formation in photosynthesis. तो ये मेरे पास रॉन्ग है. ऑक्सीडेटिव अकेला होता तो मेरे पास राइट होता. फोटो वर्ड हो गया तो ये रॉन्ग है मेरे पास. तो फोटो वर्ड किसमें? फोटोसिंथेसिस में. सो दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन. The role of oxygen is limited to the terminal stage of respiration process. अभी मैंने आपको बताया था ना ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन है, ना मेरे पास इंटरमीडिएट में है, ना मेरे पास क्रेब्स साइकिल में, ETS के भी एंड में है. So this is correct out here. Proton cross the outer membrane of the mitochondria. कहाँ पे रॉन्ग हो गया? यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन में नहीं, इनर मेम्ब्रेन में. हमारे पास ETS कहाँ पे होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो ये मेरे पास यहाँ पे रॉन्ग हो गया. Therefore, the answer out here happens to be the A, B and the D statements out here. So the answer for this question happens to be the B option. Fine. 93. The transverse section of monocot root. Monocot root.
shows the following internal tissue organization, arrange them in correct sequence आपने बताना है। तो अगर मैं सीक्वेंस पे जाती हूँ, बाहर से पूछा कहाँ से, फ्रॉम द पेरीफेरी, पेरीफेरी मीन्स बाहर में, सबसे पहले कौन आता है मेरे पास, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कौन आता है, हाइपोडर्मिस, फिर कौन है, कॉर्टेक्स, फिर कौन है, एंडोडर्मिस, फिर कौन है, पेरिसाइकल, वास्कुलोबंडल पिथ। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया एपिडर्मिस, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर मेरे पास कौन आता है यहाँ से, कॉर्टेक्स, फिर मेरे पास कौन आता है यहाँ से, एंडोडर्मिस, फिर कौन आता है, पेरिसाइकल, फिर कौन आता है, पिथ। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सी से स्टार्ट करें, हमारे पास सी, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो गया। फिर मेरे पास आता है ई, तो ये दोनों में है, सी ई दोनों में है। फिर मेरे पास आता है ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। देख लीजिए डी एंड बी भी है यहाँ पर। देयरफॉर 93 का आंसर इज द सी ऑप्शन। 94, in plants sucrose is converted into 2 molecules of what, किसके अंदर जाता है, ये दो का कॉम्बिनेशन है, कौन है ये, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ड्यू टू एक्शन ऑफ, एक पेपर में ये भी आ सकता है, सुक्रोज इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज विद द हेल्प ऑफ डैश एंजाइम। तब आप क्या लिखोगे, इन्वर्टेज। यहाँ पे हमने इन्वर्टेज पहले ही लिख दिया है, पर किसमें तोड़ा जाता है, इनटू व्हाट, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। देयरफॉर द आंसर फॉर द 94 हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 95। Read the following statements and choose the correct set of correct statements out here. In cymose inflorescence, हमको पता दो inflorescence होते हैं, racemose and cymose. The flowers are in acropetal succession. Acropetal मतलब क्या, older towards the base and younger towards the periphery. Periphery नहीं बोलो तो at the top of here. पेरीफेरी कब बोलते हैं, बाहर में और अंदर में, द पेरीफेरी एंड सेंटर, बट बेस एंड एट द टिप, तो उसको हम बोल रहे हैं एक्रोपिटल। बट ये रॉन्ग है, ये किस में दिखता है, रेसिमोस में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था मेरे पास में, यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए, बेसिपिटल। सो दैट वर्ड इज रॉन्ग। बेसिपिटल मतलब छोटे वाले नीचे, बड़े वाले ऊपर। सो दैट इज रॉन्ग आउट हियर। नहीं तो मैं यहाँ पे रेसिमोस करती तो तब भी करेक्ट कर देती एक्रोपिटल के साथ। अगर मुझे साइमोस रखना है तो मुझको क्या करना है, बेसिपिटल आउट हियर। So this is a wrong statement. In Gulmohar, the flowers are actinomorphic. अगर आपको याद है, pea, bean, Gulmohar, cassia shows you what, zygomorphic condition. So this is also wrong. Other three options भी बता दिया मैंने आपको. In the flowers of cucumber, the margin of the thalamus grows upward and closing the ovary completely. That means वो क्या बन गया, inferior ovary. And the other parts of flower arise above the ovary. That means inferior ovary, which is correct line out here. Cucumber के साथ में क्या example दिया NCERT ने, cucumber, guava and the ray floret. So this is correct answer out here. Bracts are reduced leaves. Yes, bracts are छोटा छोटा leaves which are at the base of what, the flower. तो flower का base क्या होता है मेरे पास, pedicel. Base of the pedicel or the flower, which is a correct line out here. Flowers are hypogynous in mustard. Yes, it is hypogynous in mustard. मतलब superior ovary mustard में है, और किस में लिखा है बुक में, धतूरा में लिखा है, चिली में लिखा है। That means basically Solanaceae और Brassicaceae family के बारे में लिखा, which is a correct option out here. So the correct statements answer out here happens to be the C, D and E option, and that is option number D. So let's talk about the next question now, and the next question is the 96th question. Let's talk about this. Given below are two statements. Statement 1, rainforest which used to cover पहले था कितना, 14% of the earth's land surface is now reduced to 6%. yes, तभी तो biodiversity कम होती जा रही है। तो इसका this is a right statement out here, true. Amazon rainforest has the greatest biodiversity on earth, which is again correct. इसको क्या बोलते हैं, lungs of the planet, and ये भी correct है मेरे पास. So that means both the statements are correct. The answer for 96 happens to be the A option. 97. Match the list 1 with list 2. Let's see to that. DNA fingerprinting. Who explained about DNA fingerprinting? Details किसने दिया, Alex Jeffries. That means the 4th point. ठीक है, Pneumococcus
निमोनोकोकस कॉसेस निमोनिया, आर टाइप एंड एस टाइप। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मेशन। तो साइंटिस्ट कौन है? ग्रिफिथ। ई कोलाई में किसने एक्सपेरिमेंट किया था? ई कोलाई में जब एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, मेसेल्सन एंड स्टॉल इन्होंने करा था यहाँ पे। सो दैट इज 1 आउट हियर। देन कम्स द बैक्टीरियोफाज जिसने हर्सी एंड चेस ने किया था और उन्होंने बताया था कि DNA is the genetic material and that was proved unequivocally. That means the total universe, everybody agreed to his experiment. तो हमारे पास मैच करने से देखो, मेरे पास A का 4, B का 3, C का 1 and D का 2. So that means this happens to be the answer for that. That is option number B. Next, 98 out here. Which the following are valid pointers? That means the correct point out here to the demerits of the two kingdom classification proposed by Linnaeus. Linnaeus ने हमारे पास plants and animals को बता दिया। 2 living organisms है, one is plant, one is animal. Basically ना तो उसने autotrophic heterotrophic लिया, ना तो उसने कहते हैं eukaryotes और prokaryotes लिया यहाँ पे, ना उसने unicellular multicellular लिया। तो main focus was on what? The cell wall out here. So let's see to that. कौन इसके valid pointers है for the demerits out here? जहाँ पे confusion था कि ये plant है कि animals, तो वहाँ वाला कौन सा इसका demerits है? यूग्लिना, obviously यूग्लिना के पास both plants and animals के feature है, तो he was not aware कि इसको कहाँ रखे. So this is the correct statement. Chlamydomonas is autotrophic but also has flagella. Autotrophic तो plants हो गया, flagella है movement दिखा रहे तो animals, तो ये भी correct है यहाँ पर. Slime molds क्या है? Resemble animals in one phase of the life cycle and plants the other phase. Obviously इससे भी नहीं मालूम पड़ा था इसको कहाँ रखा जाए, plants में के animals में. So ये तीनों के तीनों statements are the correct answer for the demerits out here. They support the demerits out here. The answer for this happens to be the D option. Question number 99. How many of the following statements regarding fungi are true? Fungi से है asexual reproduction is commonly occurs by the formation of spores. Yes, यहाँ पर हमारे पास में spores से होता है, zoospores है हमारे पास में, हमारे पास conidiospores है, sporangiospores है. Correct. Asexual reproduction is by the spores. Correct. Their bodies consist of hyphae that may be interconnected to form the mycelium. Yes, interconnected hyphae form the mycelium, which is again correct. Fungi can break down almost all the carbon containing compounds या products out here. I hope आपको पता है bacteria and fungi are decomposers. तो हमारे अंदर क्या है, जितना भी organic material है वो सब किसका बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. तो कार्बन तो है ही, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, विटामिन हो, सबको तोड़ता कौन है? It is been broken down by fungi and bacteria. So this is again a correct line. Fungi do not enter symbiotic relationship. No, fungi तो symbiotic relationship बनाता है. All of them do not form it, but many fungi show symbiotic relationship with what? एक तो मेरे पास mycorrhiza है, एक मेरे पास lichens है. So this is a wrong line out here. So मेरे पास statements कितना correct है? I'm having 1, 2 and 3. Therefore the answer for this happens to be the B option. So answer is B for 99. Question number 100. In Pinus, Pinus is a gymnosperm. The stem is branched. Yes, the stem is branched. Pinus or Cedrus में, which is correct line. Roots have fungal association. अभी बताया था fungi में symbiotic relationship होती है. क्या है वो? mycorrhiza. तो पाइनस के साथ कौन कर रहा है फंगल एसोसिएशन? द ग्लोमस जो है मेरे पास में फंजाई वो कर रहा है. द मेल एंड द फीमेल स्ट्रॉबेरी आर फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट ट्रीज. नो, ये मोनोशियस ट्री है. बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन द सेम ट्री. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट आउट हियर. So how many statements are correct? The first 2 statements are correct, and the answer for the question happens to be only 1 and 2 are correct. I hope अभी तक 10 के 10 क्वेश्चन आपने राइट किए होंगे. मैंने स्टार्टिंग के दिया है. Let's proceed further. 111. Which of the following statement regarding gymnosperms are correct? चलिए देखते हैं. Ovules are naked. Yes, ovules are naked and not enclosed by any ovary wall. करेक्ट है, यहाँ पे ओवरी वॉल नहीं है तभी इसको नेकेड बोलते हैं. बिफोर फर्टिलाइजेशन, यस इसमें नहीं है, करेक्ट लाइन है. बट सीड्स दैट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कवर्ड.
सीड्स की कवरिंग कौन होती है? ऑब्वियसली फ्रूट जब बनता है पेरिकार्प बनता है। तो अगर मेरे पास ओवरी वॉल ही नहीं है तो मेरे पास पेरिकार्प नहीं है, दैट मीन्स मेरे पास फ्रूट भी नहीं है। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ तक इट इज करेक्ट बट यहाँ से इट बिकम्स रॉन्ग आउट हियर, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। In all the living gymnosperms, sporophyte is dominant over the gametophyte, which is a correct statement. Up till bryophyte हमारे पास gametophytic generation dominate होती है. From pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, sporophytic generation is dominant. But ये जो line है in all the living gymnosperms, अगर मैं angiosperm भी लिखती तब भी ये right होता. Sporophyte is dominant over the gametophyte. ठीक है, correct है. They are heterosporous. Yes, heterosporous means seed बनाते हैं. So that is different types of spores present. कौन सा sexual spores present? That leads to what? Seed formation. So this is correct. The male and the female gametophytes do not have independent existence, which is correct. हमारे पास में लोअर प्लांट्स में दैट मीन्स टेरिडोफाइट में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाता है, ब्रायोफाइट में दिखाता है बट जिम्नोस्पर्म में नहीं दिखाता है. तो मेरे पास एक ही रॉन्ग है यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1. तो आंसर फॉर दैट इज 2, 3 and 4. दैट इज ऑप्शन नंबर सी आउट हियर. 102. The gamma, whatever you pronounce that as, produced by some liverworts. ये भी क्वेश्चन हो सकता था. Gamma is produced by what? All liverworts, some liverworts, mosses. तो आपके पास some liverworts. A very common example for that is what? Mertensia. Is water gathering structure? No. Light capturing structure? No. A sexual structure. ये देखिए इसमें बीच में gap है. Okay. And an asexual structure, which is correct out here. So this is not asexual structure. This is the asexual structure. This is the answer for that. These gamma cups are multicellular, green, formed on a base, and that base is known as what? Gamma cup. ठीक है. This when detached हमारे पास क्या करते हैं? New plant body बना देता है. So the answer for that happens to be the D option. ध्यान से पढ़ना, जल्दी से asexual मत पढ़ के छोड़ देना. अलग है, sexual अलग है. 103. How many meiotic divisions? Meiosis 1 से 4 बनता है. Required to produce 50 wheat grains. When I say wheat grains, I require what? Microspores. I require what? Megaspores. तो हम सबको पता है microspore में microspore mother cell undergoes meiosis to form 4 microspores. ठीक है ना. अब मेरे को 4 माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं तो एक मियोटिक डिवीजन चाहिए, बट अब मेरे को 50 बनाने हैं माइक्रोस्पोर. तो क्या करूंगी? डिवाइडेड बाय 4. डिवाइडेड बाय 4 करूंगी तो 1, 10, 12.5. तो मेरे पास 12.5 मियोटिक डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट. 0.5 मतलब मियोसिस 1 हो जाने से मेरे पास 2 डॉटर सेल्स आ जाएंगे. बट लाइक टू टेल यू दैट इन बायो, इन बॉटनी हमारे पास आधा डिवीजन नहीं होता है. तो आई एम नॉट सपोज टू टेक इट एज 12.5. आई एम सपोज टू कैलकुलेट दिस एज 13. Fine. But when I talk about the megaspore out here, megaspore में मेरे पास में क्या हो रहा है? Megaspore में 1 megaspore mother cell undergoes meiosis to form 4 megaspores. But out of 4, 3 degenerate. That means 1 से मेरे पास 1 बनेगा. तो 1 megaspore mother cell undergoes meiosis to form 1 megaspore. तो दैट मीन्स मेरे को 50 बनाने के लिए कितना चाहिए? 50 ही चाहिए. सो दैट मीन्स इट इज व्हाट? n प्लस n by 4. n फॉर द मेगास्पोर, n by 4 फॉर द माइक्रोस्पोर. 50 प्लस मेरे पास कितना आ गया? 13. दैट मेक्स इट व्हाट? 63. द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपन्स टू बी द D ऑप्शन. द D ऑप्शन. ठीक है, चलिए. 104. Choose the incorrect statement with respect to the cell cycle. Duration of the cell cycle may vary from organism to organism, which is a correct statement. क्योंकि सबका अलग अलग है. आपको पता है किसका 90 मिनट्स है, किसका 1 day है. दैट मीन्स अलग अलग है, राइट है. Duration of the cell cycle is uniform in the different cell types of an organism. नहीं तो इसके उल्टा स्टेटमेंट है, तो इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट है. Events of cell cycle are under genetic control. Obviously genetic control में हमारे पास DNA duplication सब कुछ होता है. So this is under genetic control. It is divided into 2 basic phases.
yes is divided into 2 basic phases हमारे पास में. कौन कौन सा 2 basic phases? Interphase and M phase. And what does M phase stand for? Mitosis. तो ये भी 2 है, interphase and M phase. ये भी क्वेश्चन आ सकता है next time. What are the 2 phases for this? This is the 2 phases out here. Therefore the answer for 104 happens to be the B option. 105. The most dramatic period of the cell cycle. ये भी क्वेश्चन अब अलग से आता है, कौन सा ड्रामेटिक पीरियड है और क्यों बोलते हैं इसको ड्रामेटिक फेज? क्यों बोलते हैं ड्रामेटिक फेज? मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. सारे सेल कंपोनेंट्स कभी चले जाते फिर आ जाते फिर बन जाते, तो इसको बोलते हैं ड्रामेटिक फेज आउट हियर, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. It represents the phase where the actual cell division occurs. हमको पता 2 phases होते हैं, M phase होता है और interphase. Interphase में actual cell division नहीं होती है. कहाँ होती है? In the M phase. ये किसके बारे में बात करें? They are talking about what? M phase. तो dramatic phase कौन है? M phase. Actual cell division किसमें? M phase. So the answer for 105 happens to be the C option. 106. Which of the following sequence is correct with respect to the size? हम सबको पता है सबसे बड़ा हमारे पास में कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है. यहाँ पे इसका almost 10 to 20 micrometer according to the diagram. When I talk about that, the bacteria are normally what? It is having 1 to 2 micrometer. When I talk about the PPLO, pleuropneumonia like organisms, it's almost 0.1 micrometer. Viruses सबको पता है सबसे छोटा होता है, but अगर मुझसे पूछा name the smallest living organism, तब मेरा आंसर PPLO mycoplasma होगा. but अगर मेरे पास living word नहीं है which is smallest, तो वायरस है. it is almost 0.02 to 0.0 ऐसे 0.02 to 0.2 आउट हियर, तो ये सबसे छोटा है. तो इफ आई टॉक अबाउट दैट, तो मेरे पास सीक्वेंस आता है द बी ऑप्शन. जस्ट सी टू दैट डायग्रामेटिकली जो लिखा है वो इसमें ऐसा साइजेस लिखा गया है. सो आंसर फॉर 106 हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. ठीक है ना? चलिए 107. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द सेल वॉल. इट इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर विच इज करेक्ट आउट हियर. अगर सेल मेम्ब्रेन होती तो लिविंग एंड डायनेमिक स्ट्रक्चर. Present in fungi and plants, yes, दोनों के पास में सेल वॉल होता है. Provides barrier to undesirable macromolecules, which is also correct. It's a barrier out here. ये डैमेज नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं करने देता, प्रोटेक्शन फ्रॉम डैमेज. ठीक है. प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ. यस, प्राइमरी सेल वॉल ग्रो करता है, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. प्राइमरी सेल वॉल ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स. ये जैसे जैसे सेल मैच्योर करता है प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाती है. वाई? बिकॉज सेकेंडरी सेल वॉल बन रही है. मोर द सेकेंडरी सेल वॉल बीन फॉर्म्ड, तो ये हमको दिखाई नहीं देते. दैट इज वाई इट्स नोन टू बी डिमिनिशिंग आउट हियर. तो आंसर फॉर दिस इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द आंसर फॉर दैट इज द डी स्टेटमेंट या दी ऑप्शन आउट हियर. 108. ट्रू फॉर लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है. अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल. यस, गोल्गी एपरेटस जो है वेसिकल बनाते हैं, उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएस है, लाइपेस है, सब कुछ है यहाँ पर. formed by the Golgi bodies. Yes, it's formed by the Golgi apparatus, Golgi bodies, which is rich in hydrolytic enzymes. बता दिया आपको, and that is why the answer for that happens to be the D option. Next, 109. Which structure has minimum chromosome number? सबसे कम क्रोमोसोम नंबर किसमें है? टेपेटम. आई होप आपको पता है टेपेटम इज बाइन्यूक्लिएटेड, तो यहाँ पे मेरे पास ट्वाइस एन प्लस ट्वाइस एन, तो क्रोमोसोम नंबर तो यहाँ पर ज़्यादा है. फिलामेंट ऑफ द स्टेमन ये डिप्लॉयड होता है, तो यहाँ पर इतना है. मिडिल लेयर्स भी डिप्लॉयड है. द सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है. दैट मीन्स दिस आर हैप्लॉयड आउट हियर बिकॉज ये मियोसिस कर लिया है. सो विच इज हैविंग मिनिमम क्रोमोसोम नंबर. द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. 110. Which the following is not an outbreeding device? Outbreeding means cross pollination का device नहीं है. Pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Obviously जब ये दोनों synchronize नहीं होगा तो pollen आके land भी करने से कोई फायदा नहीं उसका. तो ये right line है, ये outbreeding device है.
जेनेटिक इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जब पोलन लैंड कर रहा है स्टिग्मा पे, आपस में कंपैटिबल नहीं है तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेगा, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑटोमेटिकली अगर यूनिसेक्सुअल है तो हैज टू गो फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, विच इज करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन, hermaphrodite flower. Hermaphrodite means a bisexual flower, and normally bisexual flowers undergo self pollination normally, हमेशा नहीं, but here the answer happens to be the D option. 111. Auxin controls xylem differentiation, which is correct, and also helps in cell division in the plants. Cell division भी करता है हमारे पास plants के अंदर में, but अगर मैं बोलूँ mainly cell division कौन कर रहा है, that is cytokinin, but this also undergoes cell division out here, ठीक है। Natural cytokinins are synthesized in the region where the where rapid cell division occurs. Yes, cytokinin क्या करता है cell division, so this is also correct. Gibberellins promote nutrient mobilization. No, कौन promote करता है? cytokinin, which helps in delaying of the leaf senescence. तो ये wrong है, यहाँ पे cytokinin होना चाहिए था। इथाफोन क्या है? ये हमारे पास इथाइलिन का प्रोडक्ट मतलब फॉर्म है। इथाफोन इज द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड, अ सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन। नो, इज अ सोर्स ऑफ व्हाट? इथाइलिन। ये भी रॉन्ग है हमारे पास। एप्लीकेशन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ एब्सिसिक एसिड कैन रिड्यूस ट्रांसपिरेशन रेट, विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो मेरे पास रॉन्ग कौन कौन है? थर्ड एंड द फोर्थ स्टेटमेंट। देयरफॉर द आंसर फॉर दैट इज व्हाट? द करेक्ट बताया है, हमको पूछना है। तो 1, 2 and 5 happens to be correct. The answer for that happens to be the option number A. 112. The reason for low productivity in ocean, या ocean के अंदर low productivity क्यों होती है? हमको पता है 170 बिलियन टन्स बनते हैं ओशन के पास, जस्ट हमारे पास में 55 बिलियन टन्स है। क्यों ऐसा है? लाइट डिक्रीजेस विद द डेप्थ। येस, ओशन आर वेरी डीप आउट हियर, तो वहाँ पे लाइट पहुँचती नहीं, तो हमारे पास प्रोड्यूसर्स बहुत कम है। एंड नाइट्रोजन बिकम्स लिमिटेड आउट हियर, दैट मीन्स नाइट्रोजन या न्यूट्रिएंट्स आर लिमिटिंग आउट हियर। बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर लेट्स स्टिल सी द फोर्थ ऑप्शन, न्यूट्रिएंट्स बिकम्स अनलिमिटेड। नो, न्यूट्रिएंट्स अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड हो जाता है, सो दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग। द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। 113. Cell growth is continuous. Yes, cell growth is continuous in the terms of what? When the cell grows out here, तो क्या grow होता है? The cytoplasm. The answer for that happens to increase the cytoplasmic contents. ना प्रोटीन से कुछ लेना देना, ना DNA से लेना है, ना हमारे पास RNA कंटेंट से। The line of NCERT says that जैसे जैसे सेल ग्रो कर रहा है, that means the cytoplasm is growing. Therefore, the answer for this happens to be the C option. 114. Match the column 1 with 2. Let's go for it. Coleorhiza, it's a covering of the radicle. तो मेरे पास किससे मैच कर रहा है? फोर्थ वाले। सेम। फूड स्टोरिंग टिश्यू, तो कौन है मेरे पास में? इट्स द एंडोस्पर्म। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, नॉर्मली 1 ग्रेप्स आर पार्थेनोकार्पिक। हमारे पास मैंगो भी पार्थेनोकार्पिक हो सकता है, बट आई कैन नेवर हैव मेज एज पार्थेनोकार्पिक। वाई? अगर ये पार्थेनोकार्पिक होगा तो सीड नहीं होगा, तो मैं क्या खाऊंगी मेज के अंदर? सो दिस कैन नॉट बी मैच्ड विद द थर्ड वाला। ड्रूप, कौन है मेरे पास? मैंगो। सो दैट मीन्स पार्थेनोकार्पिक में आई एम सपोज टू प्रेफर द फर्स्ट ऑप्शन रादर देन 2। सो बिकॉज ड्रूप मेरे पास कौन है? मैंगो है। ग्रेप्स आर नॉट ड्रूप्स आउट हियर, ग्रेप्स आर व्हाट? बेरीज आउट हियर। मेम्ब्रेनस सीड कोड किसका है? मेज का यहाँ पर। ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। आंसर देखते हैं। 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, बाकी तो कट गया। फिर 5 आ गया, दैट मीन्स मेरे पास ये करेक्ट है। सी से 1, इससे 2, दिस इज इट। द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन। ठीक है ना? अगर किसी को कंफ्यूजन है बिटवीन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में ग्रेप्स एंड मैंगो, तो आप देखो कि मैच द फॉलोइंग में मेरे पास ग्रेप के साथ है ही नहीं, सो यू कैन इजिली गो फॉर व्हाट? द डी ऑप्शन। विच द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। ठीक है, किसके बारे बता रहे हैं? साइंटिफिक नेम्स के बारे बता रहा है। सपोज आई गो फॉर राइटिंग एनी साइंटिफिक नेम, इफ आई गो फॉर राइटिंग पाइसम सेटाइवम, हम सबको पता है ये जो साइंटिफिक नेम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, लैटिन लैंग्वेज में दिया गया है, और लिखते कैसे? इटैलिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना? बट अगर मैं नॉर्मल लिख रही हूँ तो आई राइट इन द नॉर्मल फॉन्ट एंड उसको मैं अंडरलाइन करती हूँ।
पहला वाला होता है जेनरिक नेम, द सेकेंड वाला होता है स्पेसिफिक नेम, और यहाँ पर जेनरिक नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स, स्पेसिफिक नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर. लेट्स टॉक अबाउट दैट विच इज अ रॉन्ग लाइन आउट हियर. हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, करेक्ट. Every species has a generic name, specific name, right है. Scientific names Latin में दिया गया है, right है. Generic and the specific name should be written starting with small letters. अगर आप देखो इसको मैंने capital, इसको मैंने small लिखा, so this is a wrong statement. The answer for 115 happens to be the D option. 116 a diagrammatic question, let's go for it. The transverse section बताओ ये किसका transverse section है. अगर मैं जाती हूँ यहाँ से तो ये देखो एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस, वस्कुलर बंडल, ग्राउंड टिश्यूज. तो आपको देखने से पता लग रहा है ये मेरे पास क्या है, इट्स अ स्टेम का सेक्शन आउट है. तो कैसे पता लगा, ये वस्कुलर बंडल जो है यहाँ पे स्प्रेड है और ये ओपन नहीं है, क्लोज है, कहीं पे कैम्बियम नहीं बना है. सो दिस इज व्हाट, रूट तो कट गया यहाँ पर, ये स्टेम का है बिकॉज रूट में मेरे पास रूट हेयर सब बना होता, स्टेम में मेरे पास है. अगर रिंग में होता तो डाइकॉट स्टेम है. स्प्रेड आउट वस्कुलर बंडल, बड़े वस्कुलर बंडल इन द सेंटर, स्मॉलर टुवर्ड्स द पेरिफेरी. दिस हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन, मोनोकॉट स्टेम. 117 अ वुमेन इज मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम, सेकेंड मैरिज हो गई, विच nowadays it's a normal thing out here. Her first husband was of blood type A. तो husband का blood type देख लेते हैं, ये A husband का blood type है, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे either this हो सकता है या this हो सकता है ना, A ही लिखा है, ठीक है. And her child by the first marriage was of the O blood group. तो O blood group मतलब ये ऐसा होना पड़ेगा. That means ये तो चांस है ही नहीं उसका, क्लियर. अब वहां पर जो है मदर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, जो भी ब्लड ग्रुप है पर उसके पास भी हेट्रो होना पड़ेगा, एक तो ओ आना पड़ेगा, ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. अभी तक ये क्वेश्चन मार्क है, ये हो गया फर्स्ट. अच्छा, एंड हर चाइल्ड बाय दैट मैरिज वाज ऑफ द ब्लड टाइप ओ, बता दिया ये मैंने, ओ हो गया, ठीक. हर न्यू हस्बैंड इज ऑफ द ब्लड टाइप बी. अब सेकेंड बार शादी की तो हस्बैंड जो है यहाँ पे ब्लड टाइप बी, तो वहां पे भी ब्लड टाइप बी होने से मेरे पास में ये दो ऑप्शंस है, क्लियर. एंड द चाइल्ड इज ऑफ द ब्लड टाइप ए बी, तो बच्चा जो हो गया मेरे पास में ए बी है. तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ब्लड टाइप हो सकता है. अब ये मम्मी का जो ब्लड टाइप है, हमने पहले ही बोला था यहाँ पर ये ओ तो आना ही है. यहाँ पर क्या है, ये ए आया तो ए तो इसी से आना है, दैट हैपेंस टू बी सो, तो ये भी ए होगा. तो मेरे पास में एक कंडीशन आया, दैट मीन्स मम्मी द वुमेन्स ए बी ओ जीनोटाइप क्या होगा मेरे पास में, इट हैपेंस टू बी द ब्लड टाइप ए. एंड इसका ब्लड कैसा होना पड़ेगा जीनोटाइप फॉर दिस कंडीशन. तो ये मैंने आपको ये लिख के दे दिया, इट कैन नॉट बी ए बी. अगर वहां पे ए बी होता तो मेरे पास ये आ ही नहीं सकता था. तो आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द 117 का ए ऑप्शन. 118 if there are 10,000 nitrogenous base pairs, 10,000 base pairs, then how many nucleotides are there? 10,000 base pairs है, 10,000 nucleotide pairs भी होंगे, 10,000 nucleoside pairs भी होंगे. तो अब मेरे पास क्या पूछा उसने, how many nucleotides are there? So that means pair नहीं पूछा, 10,000 का डबल क्या होता है 20,000. सिंपल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. बट अगर मैं न्यूक्लियोटाइड पेयर्स लिखती तो आंसर यही होता, दैट विच इज व्हाट, बी ऑप्शन. 119 regulation of the gene expression in the eukaryotes cannot take place at, हम सबको पता है कितने लेवल्स पे होते हैं, 4. कहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट दैट. ट्रांसक्रिप्शन पे है, फिर मेरे पास प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बनी है उसको मैंने क्या करना है, स्प्लाइसिंग करना है, फिर मैंने यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स उसको बाहर भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, एंड फाइनली एट द ट्रांसलेशनल लेवल. तो लेट्स सी दैट यहाँ पे इनको छोड़ के क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट लेवल, दैट मीन्स क्या, जहाँ पे मेरे पास HRNA बन गया है तो उसको मैंने प्रोसेसिंग करना है. स्प्लाइसिंग वही है. ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म करेक्ट है. रेप्लिकेशन लेवल रॉन्ग, रेप्लिकेशन का तो नाम ही नहीं है, रेप्लिकेशन पहले हो जाता है. सो द आंसर फॉर दैट इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी. 120 the size of VNTR very variable number tandem repeat कितना है, 0.1 to 20 kb. ये तो लाइन है, इसको याद ही करना है. 0.1 to 20 किलो बेसिस हो सकता है हमारे पास. तो आंसर फॉर 120 happens to be the A option.
121 द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन डी। देखो मैंने पहले ही लिख दिया डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन डी। बुक में अगर कुछ नहीं लिखा, सिंबल पूछा के उन्होंने खुद लिखा एन आउट हियर, बट हमने जब लिख दिया डेंसिटी का सिंबल डी है। अब व्हाट इज डी? डेंसिटी इज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं स्पेस। तो मेरे पास विच इज अ राइट आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन, नंबर बाय द स्पेस। ठीक है, तो आंसर इज सी। स्पेस बाय द नंबर नहीं है और साइज बाय तो वेट है ही नहीं, तो आंसर इज सी। 122 the 4 levels of biological organization to which ecology is basically concerned। अगर मैं इकोलॉजी नहीं लिखती तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल से स्टार्ट होता, बट व्हेन आई टॉक अबाउट इकोलॉजी स्टार्टिंग किससे होता है? ऑर्गेनिज्म से। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम इज द फाइनल इकोलॉजी का यूनिट आउट हियर, लेवल आउट हियर। द आंसर हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन। 123 according to MacArthur, warbler means the birds का species living on the same tree। बुक में क्या लिखा? कितने warbler species? 5। which type of interaction? तो इसका है what is this? they are living together, resource partitioning करेंगे, the coexist करेंगे। तो what is this? interaction known as coexistence। how do they live out here? by resource partitioning। the answer for that happens to be the B option। 124 in human the most number of genes are located on chromosome number 1। I hope आपको पता है chromosome number 1 was the last chromosome to be sequenced out here। क्यों? बाकी सब कर लिया, ये क्यों लास्ट है? बिकॉज सबसे बड़ा क्रोमोसोम है और 1 2 3 4 किस बेसिस पे देते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इट। द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी ऑप्शन नंबर ए। 125 which of the following technique is employed in human genetic counseling। ह्यूमन जेनेटिक काउंसलिंग करने के लिए हम जब जाते हैं डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूरा हिस्ट्री पूछता है। व्हाट इज दैट नोन एज? दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। आई होप बाकी आपको पता, पॉलीप्लॉइडी मीन्स मोर देन द नॉर्मल सेट ऑफ इट। और व्हाट इज दिस? दिस इज टू स्टडी द प्रीनेटल का जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड जेनेटिक स्टडी ऑफ इन द प्रीनेटल स्टेज आउट हियर। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो पता ही आपको। सो व्हाट इज दिस? ऑप्शन नंबर C। 126 a colorblind man marries a daughter of a woman, normal woman and a colorblind man। मतलब ये मेरे पास जो वुमेन है उसकी मम्मी नॉर्मल थी बट पापा थे, तो पापा से वुमेन में आया तो she becomes carrier। दिस इज इट, द जीनोटाइप फॉर हर। एंड अ colorblind man, इसका तो ऐसा हो गया। ठीक है, अब इनके जब बच्चे हुए, लेट्स सी टू दैट, एक्स 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 वाई एक्स वाई। ठीक है ना, देखते हैं इसको। इसको मैंने इससे क्रॉस किया तो ऐसे आ गया, इसको इससे किया तो ऐसे आ गया, एंड सो ऑन, ऐसे हो गया। नाउ व्हाट इज दिस? कैरियर डॉटर। कैरियर डॉटर कितनी है? दिस इज 1 कैरियर डॉटर। ठीक है, कलर ब्लाइंड डॉटर, दिस इज 1 कलर ब्लाइंड डॉटर। नॉर्मल सन, दिस इज अ नॉर्मल सन। Colorblind son, this is a colorblind son. So what is sons born to the couple will be 1 1 1 1। The answer for that happens to be the C option। Karyotype, if you remember book के अंदर एक karyotype बना हुआ है। कौन सोच सकता है किसका karyotype बना है? It's a karyotype for the Down syndrome। ठीक है ना, karyotype for Down syndrome बना है। कौन सा chromosome shows you abnormality out here? that means trisomy out here, 21st chromosome। तो वो डायग्राम भी देखना। तो let's talk about that। technique of arranging chromosome of a cell based upon the morphology and the size of it is known as karyotype out here। I hope it's clear। study of human genetics, कोई genomics बोलता है, कोई just genetics बोलता है। study of nucleus, karyology। therefore the answer for this question happens to be the A option। तो carrion से देख लेना, karyo nucleus। ठीक है, चले। 128 how much of the net primary productivity of the terrestrial ecosystem? Primary productivity means NPP is eaten and digested by the herbivores। इससे कितना जा रहा है इसके पास? only 10% of that to the herbivores। ठीक है, the answer for 128 happens to be the B option। ड्यूरिंग द फूड चेन द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, कौन जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगा? प्रोड्यूसर के पास, उससे 10%, अगले के पास उसके 10%, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम एनर्जी किसके पास है? ए के पास। 130 4 स्टेटमेंट्स आर देयर, select the 2 correct ones from them। चलो देखते हैं हम लोग। अ लायन ईटिंग अ डियर
What is this? Lion is a predator out here and this is the prey, ठीक है? And a sparrow feeding on the grain. Sparrow भी predator है, हमने ये भी पढ़ा है. You eating a mango, you are also predator. So that means ये भी predation कर रहा है, ये भी predation कर रहा है. Yes, this is similar to each other. प्रीडेटर स्टारफिश पिस एस्टर कहाँ पे मिला था हमारे पास में? अमेरिकन पैसिफिक ओशन पे, ठीक है? हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, यस. और मेनी इनवर्टिब्रेट्स. क्या लाइन है बुक में? जब इसको पिस एस्टर को निकाल दिया यहाँ पे मोर देन 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज गॉट एक्सटिंक्ट. सो अगर मैं इसको रखती हूँ तो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ाता है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट लाइन आउट हियर. Predators ultimately lead to the extinction of prey species. No, predators are prudent. वो उसको मालूम है मैं ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा. अगर मैंने ओवर एक्सप्लॉइट कर गया तो मेरे को बचेगा क्या खाने के लिए? तो वो प्रे स्पीशीज को एक्सटिंक्ट नहीं करने देते हैं. वैसे भी फूड चेन फॉलो नहीं होता, फूड वेब फॉलो होता है. तो इसके लिए दे डू नॉट कॉज व्हाट द एक्सटिंक्शन ऑफ द प्रे स्पीशीज. कोई एक आधा हुआ, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट नॉर्मली इट इज नॉट हैपनिंग आउट हियर. प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स सच एज निकोटिन, स्ट्रिक्निन और द प्लांट्स आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. नो, दिस आर नॉट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, दिस आर डिफेंसिव मैकेनिज्म इन द प्लांट्स आउट हियर, ठीक है? दिस आर केमिकल्स जिससे वो अपने प्रीडेटर से बचने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. द आंसर फॉर दैट इज द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. देयरफॉर द आंसर इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट 131 थोड़ा डेटा है, लेट्स गो फॉर इट. इंडिया हैज कितना बायोस्फीयर रिजर्व, कितना नेशनल पार्क्स एंड कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? बुक का लाइन है 14 बायोस्फीयर्स है, 90 नेशनल पार्क्स है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. तो आंसर इज दिस. गूगल में से यू मोर देन दिस. नो, आपने फॉलो करना एनसीईआरटी. द आंसर फॉर दैट हैपन्स टू बी द सी ऑप्शन. 132 करेक्टली मैच्ड पेयर. कंपोजिटी क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एस्टरेसी. कैलिक्स इज टिपिकली एब्सेंट और हेरी पेपर्स. हमको पता है यहाँ पर जब हम के लिखते हैं, के नीचे पेपर्स लिखते हैं. हेरी कैलिक्स विच इज अ करेक्ट लाइन. क्रूसीफेरी को हम ब्रासिकेसी भी बोलते हैं. क्रूसीफेरी से डाइकॉट और उसके अंदर टिपल्स हो ही नहीं सकते. अगर ऐसा लिखा तो लिलिएसी में होगा, ऑर्किडेसी में होगा, पोएसी में होगा, बट यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग है. लेग्यूमिनोसी द फेबेसी का वो, ठीक है ना? गैमोसिप्लस वैक्सिलरी, हम सबको पता है वैक्सिलरी जो है गैमोसिप्लस नहीं दिखाता, सिपल्स नहीं दिखाता. कौन दिखाता है मेरे पास में? वैसे भी ये पिटल्स का एस्टिवेशन है. सो ये मेरे पास सिपल इज रॉन्ग आउट हियर. तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. मालवेसी डज शोस अस एपिकैलिक्स. हमारे पास विच अ सेट ऑफ स्टेमेन. नो, स्टेमेन का सेट नहीं है. एपिकैलिक्स क्या है? इट्स एडिशनल होल बिलो द कैलिक्स. तो ये भी मेरे पास रॉन्ग है. देयरफॉर द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन. Which of following genotype expresses gametes? Let's talk about that. Which expresses गैमेट मतलब खुद गैमेट है. यहाँ तो मेरे पास गैमेट बनना पड़ेगा, कैपिटल टी वाला जाएगा, इस साइड से जाएगा. सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. यहाँ पे भी मेरे पास 2 टी आ गया, तो दिस कैन नॉट बी अ गैमेट. अ सेम जीन की दोनों एलिल्स नहीं प्रेजेंट होती है आउट हियर, बिकॉज द सेकेंड लॉ सेज दैट सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द 2 एलिल्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. तो ये भी रॉन्ग है. इसको देखो, इसमें भी 2 आर है, तो ये दोनों एलिल्स सेग्रीगेट नहीं हुई. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. लुक एट दैट, NMLR चारों के चारों डिफरेंट एलिल्स है. दिस ऑटोमेटिकली प्रूव्स दैट इट्स अ गैमेट का जीनोटाइप. सो दिस द आंसर फॉर दैट. द आंसर फॉर 133 हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. 134 लेट्स रीड दैट. अ सिंथेटिक mRNA रिपीटेड सीक्वेंसेस है. यहाँ पे देखो ACA CAC ACA CAC, ठीक है? ये क्या बना रहा है? मेरे पास प्रोटीन बना रहा है. चलो देखते हैं. यूज फॉर द सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम लाइक वन यूज बाय निरनबर्ग. हमने पढ़ा था निरनबर्ग में सेल फ्री सिस्टम में क्या था? डेसिपर क्या था? We assume that the protein synthesis can begin without the need of initiator codon. I hope आपको पता है initiator codon कौन है? AUG. यहाँ पे टेक्निकली नहीं है, बट assume किया गया. चलो ठीक है. तो what will be the product for that? Let's see to that. Is this going to form one protein or many proteins? एक ही प्रोटीन बनाएगा. 1 प्रोटीन राइट है, 3 प्रोटीन्स रॉन्ग, 3 प्रोटीन्स रॉन्ग, 1 प्रोटीन राइट. अब इनमें से देखते हैं. कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल अमीनो एसिड. नो, अमीनो एसिड तो डिफरेंट है. तो ये मेरे पास ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ 2 डिफरेंट अमीनो एसिड. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. और सिंगल अमीनो एसिड इज रॉन्ग. तो यहाँ पे मेरे पास 2 डिफरेंट अमीनो एसिड ऑल्टरनेटिंग है. द आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन.
135. Which the following statement is false about a leaf? A leaf is said to be a simple leaf. This is a simple leaf. ठीक है? This is also a simple leaf. That means simple entire or incised. ठीक है? And the incision do not touch the midrib. यहाँ तक नहीं पहुँचा. Correct है. This is correct. A leaf is said to be compound when the incision of the lamina reaches to the midrib. Yes. जब ये मेरे पास यहाँ तक पहुँच जाएगी तो ये लीफ को दो लीव्स में डिवाइड कर देगी या सेवरल लीफलेट्स में डिवाइड कर देगी तो it forms what? Compound leaf, which is again correct. A leaf is the most important vegetative organ for photosynthesis. Obviously leaves ही photosynthesis करती है, कोई कोई young stem भी करता है. Which is correct. Leaf is not a transpiratory organ. No, leaf is a transpiratory organ because transpiration occurs through stomata and वो कहाँ पर होता है? Leaves में. The answer for 135 happens to be the D option. Dear students, आपने देखा है, this is quite a balanced paper. We are having questions from each and every chapter. I hope आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी and you must have secured good marks out here. Keep working hard, enjoy studying so that you see the progress in yourself. All the best.